हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. अन अर्नेस्टेड अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। उन्होंने He selected a good foil because he wanted as a thin a layer as possible. This gold foil was about 1000 atom thick. Alpha particles are doubly charged helium ions since they have a mass of 4u. The fast-moving alpha particles have a considerable amount of energy. It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms since the alpha particles were much heavier than the protons. He did not expect to see large deflections. कि इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्रव्यवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। क्योंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए इन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। अब देखिए, अब ये है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉइल। सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीकरण। ये लाइन जा रही हैं, ये हैं अल्फा पार्टिकल्स, और जो ये सर्कल हैं और इनके अंदर बिंदु हैं, ये हैं गोल्ड एटम्स। जब but the alpha particle scattering experiments gave totally unexpected results. Figure 4.2. The following observations were made. Most of the fast moving alpha particles pass straight through the cold foil. Some of the alpha particles were deflected by the soil by small angles. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. In the word of Rutherford, this result
was almost as incredible as if you fire a 5-inch shell at a piece of tissue paper and it come back and hits you. लेकिन लेकिन अल्फा कण प्रतिकन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15-इंच तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं तो और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। अब ये है ए रदरफोर्ड का जीवन परिचय। ए रदरफोर्ड 1871 to 1937 was born at Spring Grove on 30 August 1871. He was known as the father of nuclear physics. He is famous for his work on radioactivity and the discovery of the nucleus of an atom with the gold foil experiment. He got the Nobel Prize in Chemistry in 1908. ई रदरफोर्ड 1871 से 1973 का जन्म 30 अगस्त 1831 में स्प्रिंग ग्रोवा में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी की जनक माना जाता था। रेडियो धर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में उनका नोबेल पुरस्कार मिला। Let us think of an activity in an open field. To understand the implication of this experiment, let a child stand in front of a wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from a distance. He will hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeats it 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard. This is because there are lots of gaps in the fence which allow stone to pass through them. Following a similar reasoning, Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर बहुत
पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर को के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आँख बंद किया हुआ बच्चा तार से गिरी हुई चूड़ीदार पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीकरण प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। परमाणु के भीतर most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle passes through the gold foil without getting deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. A very small fraction of alpha particles were deflected by 180, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. From the data, he also calculated that the radius of nucleus is about 10 times less than on radius of the atom. परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने के पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनुविक्षिप्त भाग बहुत कम हैं। बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित होते हैं। जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनुविक्षिप्त भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 100 परमाणु का पूर्व धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित हैं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10-5 गुना छोटी है। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। There is a positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. The electrons revolve around the nucleus in circular paths. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है।
एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है।